Hello, everyone, and welcome to another episode of Behind the Curtain. The purpose of this show is to focus on the foundations of the media industry and the importance of the people who spent and are spending their time in ensuring the fraternity and the practices are given a good name and professionalism sticks around for as long as it can. Actors and individuals who build the final tier of such a network by giving their best by being in front of their camera and building the reputation of the writer, the director, producer, and every single technician involved in executing a successful project. Like that, the gentleman in front of you, which many of you might have guessed, has also played a very crucial role. He himself is a singer, an actor, a writer, and a host. Starting his career early with being an RJ, he moved on to further polish his acting skills and singing skills by proving his versatility to the very refined institution Napa. Showcased his side of humor on the very popular four-man show, went on to become the finest voice by singing his best on the very popular Muzakrat, also shook television screens through his excellence on drama series like Mukabil, Miras, Lashkara, and the very, very controversial yet powerful Meri Gudiya, on which he played a child molester. He has been one of the few actors to come onto the big screen and prove his worth of giving one hit after another, namely Namalum Afraad 1 and 2 and Baji, to his credit. His very recent appearance in Once Upon a Time in Karachi has just been launched. I have none other than Mohsin Abbas Haider in the flesh with me. I also have a very, very good relationship with Mohsin at my end through a project. However, we will see if we can squeeze that in if our time allows, because there are people out there who also want to know what's happening with it. I never spoke about it. Mohsin never spoke about it. But let's see how, if we can, if the time and patience allows. कैसे हैं आप मोहसिन? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक है। सॉरी अगर मैंने कोई डिटेल्स मिस कर ली हो। मैं यहाँ वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा था आपके आपके बारे में, एंड यू नो आई वाज ट्राइंग टू मेक इट एज पॉलिश एज आई कैन. So apologies if I missed out on something. बहुत बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन था. अच्छा मोहसिन, जैसे आपको पता है कि छोटी सी कोशिश मेरी कुछ चल रही है लास्ट ईयर से. मैं आई स्पीक टू आर इंडस्ट्री वेटरन्स एज वेल, आर राइटर्स, आर डायरेक्टर्स, आर टेक्नीशियंस, आर प्रोड्यूसर्स. और इसके अंदर मैं जो हूँ, हाँ, तो मेरा जो इसके अंदर बड़ा एक मेन फोकस होता है कि हम लोग कोई अब रैपिड फायर या 50-50 या इस तरह की चीजें तो नहीं कर रहे होते हैं, बिकॉज यू आर ए सेलिब्रिटी एंड यू आर एन एक्टर. तो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ एन अपफ्रंट एंड ब्लंट टॉक अबाउट प्रोफेशनलिज्म, मीडिया एथिक्स, फाउंडेशंस, जर्नी कैसी रही है. शुरू में तो मैंने जब राइटर्स और डायरेक्टर्स से बात की थी, मैंने कहा था यार पता नहीं एक्टर्स बात करेंगे नहीं करेंगे क्या, खुल के आएंगे बताएंगे भाई इंडस्ट्री हमारी एक किसी अच्छे सेक्शन पे या नहीं है. बट एनीवेज आई स्टार्टेड ऑफ. You have seen different tiers of in the entertainment industry, being a singer, being an RJ, being an actor, and I'm sure there was a lot of struggle involved. Has it been a very easy journey for you, or has it been a very rocky and bumpy sort of journey? अगर हम शुरू करें कराची वाले पार्ट से, जब मैंने घर वालों से इजाजत लेकर मैंने कहा कि मैं कराची जाऊंगा, और जिस इंस्टीट्यूट का आपने जिक्र किया नापा का, एक्चुअली मैं नापा के चक्कर में गया था क्योंकि मुझे म्यूजिक सीखना था और शौक था. तो म्यूजिक सीखने गया पढ़े लिखे एनवायरनमेंट में, और ये बड़ी प्रायोरिटी थी मेरी कि पढ़े लिखे एनवायरनमेंट में सीखना मुझे. तो मैं गया वहां पर सीखा, और साथ साथ फिर वो एक स्ट्रगल थी सारी. मैंने रेडियो से स्टार्ट किया. इत्तेफाक से जिस रेडियो स्टेशन पे मैंने काम किया, मैंने उनको जब अपनी जाके सीवी दी तो उन्होंने वो सीवी गंवा दी, कहीं खो गई वो सीवी. सीवी उनके पास कभी भी नहीं थी. तो मैंने वहां पे ऑडिशन भी एक रिकॉर्ड करवाया था. तो मैंने फिर जाहिर है क्योंकि मैं स्ट्रगल कर रहा था, तो मैंने कॉल की उनको. मैंने कहा सर वो मैं आया था रात को, वो ऑडिशन दिया मैंने, और मैंने कहते हाँ हाँ बिल्कुल 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 वो सीवी यार तुम्हारी, बस तुम आ जाओ ना, वो अच्छा था ऑडिशन तुम्हारा. मैं कहा ओके. मैंने कहा मैं अगर ये कॉल ना करता तो कभी भी शायद मुझे ये. तो आई कॉल और उन्होंने बुला लिया, और फिर वहां पे एज प्रोड्यूसर 107 पे मैंने शुरू किया, और साथ साथ फिर मैंने एक शोज भी स्टार्ट किए वहां पर. और मुझे लगता है कि वो मेरे जो रेडियो था वो मेरे करियर की बैकबोन बना, क्योंकि उस पे मैं एक शो करता था पंजाबी बीफ और भंगड़ा के नाम से. बड़ा हिप हॉप किस्म का, बड़ा हाइपर एक्टिव किस्म का शो होता था, पार्टी शो होता था, सैटरडे नाइट को होता था. तो वो सुन के मुझे कॉल की गई आज टीवी से भी कि हम ये जो आप कैरेक्टर करते हैं रेडियो का, यही हम जो है वो अपने टीवी पे करना चाहते हैं. तो फिर वो फोर मैन शो की सूरत में आया. फिर मैंने वही कैरेक्टर एज वीजे मैंने अब किया जट बटन यो में प्ले टीवी के लिए. और फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता साथ अपना म्यूजिक भी चलता रहा. बेपरवाह ढोला किया, नबील ने ही वो भी डायरेक्ट किया, नबील कुरैशी ने, जिन्होंने नामल मफराद भी की. राना कामरान वाज देयर टू एज वेल. यानी कि हम लोग बड़े पुराने साथी हैं आज टीवी के. तो फिर वहां से स्टार्ट हुआ.
और आहिस्ता आहिस्ता नबील हमेशा कहा करता था कि अगर मैंने कभी फिल्म की तो मैं तुझे जरूर लूंगा। तो क्योंकि वो उसके पास हमें एग्जैक्टली उसके पास हमेशा आइडियाज होते थे फिल्म के। हम अक्सर डिस्कस किया करते थे अपने उन दिनों में जब स्ट्रगल का टाइम था, उसका भी मेरा भी। तो हम डिस्कस किया करता था वो कि ऐसे होगा वैसे होगा। फिर एक दिन जब मैं मज़ाकरात के लिए लाहौर आ गया, शिफ्ट हो गया कराची से, मैंने न्यूज एंकरिंग भी कर ली उस दौरान, खबरें भी पढ़ दी और सब कर लिया मैंने। तो बाय द वे मैं सबसे ज्यादा मैंने अर्न एज न्यूज एंकर कर रहा था मैं अपने करियर में, लेकिन फिर मुझे उससे भी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली मज़ाकरात की सूरत में। तो मैं उसके चक्कर में फिर लाहौर आया और फिर मैंने वो शुरू किया। तो एक दिन नबील की कॉल आई कि ओह वो मैंने एक फिल्म लिख ली है और प्रोड्यूसर हमारे साथ हैं और मैंने तेरा नाम पेश किया है। और नबील के स्टेक्स बहुत हाई थे मुझे लेके, क्योंकि फिजा को कन्विंस करना एक नए लड़के पे, जहां पे जावेद शेख साहब हैं, जहां पे फाद मुस्तफा हैं, और एक नया लड़का जिसका फिजा ने काम नहीं देखा है एज एन एक्टर, सीरियस एक्टर नहीं देखा हुआ। तो तब तक मैंने वैसे भी एक्टिंग की भी नहीं थी, मैंने इसी तरह शोज किए थे, उसमें हम मिमिक करते थे तो वो मिमिक को और संजीदा एक्टिंग एक दो बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। तो उनके कॉन्फिडेंस को, नबील के कॉन्फिडेंस को, वो पूरी एक जर्नी है, रिजेक्शंस भी हैं इसमें बहुत सारी। कि मैं एक प्रोडक्शन हाउस में गया, वहां पे मैंने अपनी उनको एक लिख कर दिया, उन्होंने कहा एक गाना है, एक ड्रामा है, उसका सोप है, उसका एक ओएसटी लिखें आप और कंपोज करके लाएं। रातों रात आपका भाई फुल एनर्जेटिक था, नया नया गया हुआ था, तो उसने एक रात में लिखा और टक करके सुबह पहुंच गया। मैम ये नापा से क्लास खत्म हुई और बैग के अंदर उसके वो पड़े हुई है कॉपी। नापा से क्लास खत्म करके सलामत साहब से इजाजत लेके फौरन पहुंचा, उनको दिखाया विखाया। सफीना अली सफीना मेरे क्लासमेट थे, बताया सबको कि आज मैं जा रहा हूँ वहां पे। मैं वहां गया और उन्होंने कहा वो एक्चुअली पता है क्या, वो ना वो जो प्रोड्यूसर है ना, उनकी अम्मी ने भी एक लिखा था तो वो सिलेक्ट हो गया। ओह क्यूट, हाउ क्यूट, दैट इज सो क्यूट। तो और मैंने वो कंपोज भी किया था, मैंने वो लिखा भी था रातों रात। तो ऐसे बहुत से मामला, पैदल फिरना, एक टाइम के खाने के पैसे होते थे। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी जो स्ट्रगल होती है वो हम सब अपने अपने हिस्से की करते हैं, और इसको आपको मुझे लगता है कि बताना चाहिए लोगों को, ताकि जो लोग करना चाहते हैं कोई काम ऐसा तो वो इनकरेज होंगे, ना कि आप इस पे अशेम्ड हों। मैं बंस रोड के एक खोली में भी रहा हुआ हूँ, छोटी सी, जिसकी छत भी टपकती थी। मैं ऐसी बहुत सी जगहों पे रहा हूँ, एक छोटे छोटे कमरों में रहा हूँ, सुल्तानाबाद में रहा हूँ, जहाँ पे मेरे सारे पठान भाई थे, वहां पे मेरे इर्द गिर्द, उन्होंने मुझे बड़े प्यार से लेकर रखा। मैं जब कराची उतरा तो मैं जिस होटल में रहा, सनोबर होटल में, वो आज तक तारीख का हिस्सा है मेरे। मैं कराची पहली बार गया ट्रेन से, और सनोबर होटल ना रेलवे स्टेशन से निकलते ही साथ है, और वहां पे वो भाई, मुझे पठान भाई थे, वो मुझे लेकर गए ऊपर। 250-300 रुपये किराया था उस कमरे का, जहां तक मुझे याद है, या 150 रुपया था शायद। ऊपर जब वो लेकर गए भाई मुझे, तारीख और तुंद किस्म की सीढ़ियों से होते हुए, तो भाईजान आके एक कमरा था जिसमें सिर्फ एक चारपाई थी और बहुत से मच्छर थे, और उन दिनों में डेंगू भी बहुत था। मतलब कि जितना डिफिकल्ट हो सकता है बना के दिया उन्होंने मुझे, आर्टिस्ट उन्होंने मुझे बना के दिया कि भाई आए पंजाब से आए हैं, फैसलाबाद से, तो इनको बेहतरीन सहूलियात फराहम किया। तो लेकिन मोहब्बत उनकी, तो आई लिव देयर। तो मतलब मुझे लगता है कि हम अपने अपने हिस्से की सारे जो स्ट्रगल करते हैं, मैंने अपने हिस्से की और मुझे उसका रिवॉर्ड मिला। नो रिग्रेट्स, नो हार्ड फीलिंग्स, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। सही। अच्छा, इस पूरे ऑब्वियसली फॉर एन एक्टर आई थिंक बहुत ज्यादा स्ट्रगल होती है, बिकॉज वो कहते हैं कि यार इट्स बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन एक स्टार्विंग फील्ड है। मतलब कि बंदा बोलता है यार पैसे मिले ना मिले, मुझे एक शौक है, मुझे पैशन है, मुझे स्क्रीन पे आना है। उस जर्नी के अंदर होता ये है कि कभी कभी लोग इस चीज का एक नाजायज फायदा भी उठा लेते हैं। व्हेन यू कम अक्रॉस पीपल कि यार if this person is kind of like wanting a chance, a break a chance, तो इसको मैं पैसे नहीं दूंगा या मैं इसको रिवॉर्ड नहीं दूंगा। Did you ever come across such a situation of not being compensated, but still going in for the chance? And how did you feel if someone does that? क्या ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए? Just want a clear response. मैं हंस इसलिए रहा हूँ एक्चुअली कि फ्लैशबैक्स आ रहे हैं मुझे सारे। I'm sure होंगे। क्योंकि मैं बिल्कुल नया था, मैं बिल्कुल ही कोई ऐसे कोई गॉडफादर नहीं थे, मैं बिल्कुल ही अपने ओन पे ऐसे ही बावला सा बच्चा चल पड़ा, और घर वालों ने कह दिया अच्छा ठीक है कर लो शौक पूरा। और उसको नहीं पता था कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, उसको कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं थी, कोई समझाने बुझाने वाला नहीं था।
बस पता किया, नंबर से इकट्ठे किए। वो डायरी आज तक मेरे पास है जिसमें मैंने लिखा हुआ है इतने बजे इनके पास जाना है, इतने बजे इनके पास जाना है। मतलब बाकायदा वो तरले मिनतों वाला, सर मैं मिलना चाहता हूँ, सर मैं आना चाहता हूँ, सर मैं ये करना चाहता हूँ, सर मैं वो करना। मतलब जितने भी लीडिंग चैनल्स हैं इन सब लोगों से मेरी मुलाकातें हो चुकी हैं अपने उन स्ट्रगल के दौर में, जिन लोगों से अब भी मैं जाकर मिलता हूँ और मैं उनको रिकॉल करवाता हूँ कि आपको याद है मैं वही लड़का हूँ मैं जो वहां पर आया था। सही। तो इन सब से मेरी मुलाकातें हो चुकी हैं, जितने भी कास्टिंग वाले हैं, जितने भी उनके हेड्स हैं, इन सब को मेरी शक्लें याद हैं। तो आप तो पैसों की बात करें, मैंने इस हद तक मुझे बुली किया जाता था कि मेरा कॉन्फिडेंस माइनस में चला गया था। मतलब मेरे जो साथ के ही जो को वर्कर्स थे, मेरे कोलीग्स थे, दे यूज्ड टू बुली मी, अपने दोस्तों को बुलाते थे और वो जुगते मारना मुझे, मेरा मजाक उड़ाना। मैं पंजाब से जितना कॉन्फिडेंस लेकर गया था वो माइनस हो चुका था मेरा, खत्म। कि नहीं, मुझे तो आता ही कुछ नहीं है यार, मुझे तो नहीं कुछ आता। मैं क्योंकि मेरे पास मैं ऐसा नहीं था कि मैं एक बहुत गरीब फैमिली से था, लेकिन क्योंकि मैंने दावा बहुत बड़ा कर दिया था कि मैं अपने हाथों पैरों से करूंगा जो करूंगा, तो अब उसको निभाना था खुददारी में। तो मैं वो कपड़े मेरे पास जो कम थे, तो मुझे इस स्पीशीज का भी मजाक उड़ाते थे, ओ तू फिर आज वही शर्ट पहन के आ गया, अच्छा। तो वो बड़ा हर्ट होता था। मैं इन चीजों पे बहुत तकलीफ दे था मेरे लिए ये सारा एक एक जुमला, क्योंकि मैं बड़ा लाडला था और मैं एक अच्छे खानदान से था, मैंने बड़े अयाशी देखी, बड़े लाड देखे। तो वहां जाके इस तरह की चीजें, इवन मैं बाथरूम में, वो वाईएमसीए के बाथरूम में ना नहाने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, तो आई यूज्ड टू स्टैंड देयर, अपनी बारी का इंतजार करता। तो मैं नहाते हुए थोड़ा टाइम लगाता हूँ, वो तो वो मैं बाहर निकला तो उस भाई ने मुझे, कोई अंकल थे, उन्होंने मुझे कह दिया कि तेरे बाप का नहीं है ये और ये और वो, उन्होंने, और मैं कमरे में गया, आई क्राइड अ लॉट। मतलब मैं ऐसा रोया कि ये क्या। तो इस तरह के बहुत से, और प्रोफेशनली फिर जितनी मिनिमम सैलरी पे मुझे रख सकते थे मुझे रखा गया। सही है। और जब एक चैनल से एक और बड़े चैनल पे जाया गया, मैं ढके छुपे अल्फाज में बात कर रहा हूं, आई होप आप भी समझ रहे हैं, और जिन लोगों ने मेरा करियर फॉलो किया है वो भी समझ जाएंगे। जिस एक चैनल से दूसरे चैनल पे हम एक सेम शो लेकर गए विद डिफरेंट नेम, तो उसमें मेरा इंक्रीमेंट सिर्फ 5,000 रुपए का लगा था। सिर्फ 5,000 रुपए इंक्रीज हुए मेरी उस सैलरी में, जबकि अपने उन्होंने जाहिर है कि। तो बहरहाल हाँ, मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स भी किए जिनके मैंने बिल्कुल पैसे नहीं लिए। मैंने ऐसे प्रोजेक्ट इसलिए भी कर लिए क्योंकि मेरे लिए बहुत फायदेमंद थे, मैंने बिल्कुल उनको लिए चार्ज नहीं किया। कुछ ऐसे लोगों के साथ काम किया जिनको, लेकिन उनको मैं कंसिडर नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोग आपकी जिंदगी में होते हैं जिनसे आपको नहीं चार्ज करना होता, जिनसे आपकी एक ऐसी बॉन्डिंग होती है कि जिनके लिए आप, जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ होते हैं, उनके लिए आप वो कर रहे होते हैं कि हाँ, आई विल बी देयर फॉर यू गाइस। एक चैनल ने रिसेंट टाइम्स में जो मेरे साथ हुआ, रिसेंट टाइम एज एन लाइक 3-4 साल पहले की बात हम कर लेते हैं, क्योंकि मुझे अब ऑलमोस्ट 14 साल हो गए इंडस्ट्री में। तो 3-4 साल पहले एक चैनल ने मुझे जब अप्रोच किया और उनके सामने मैंने अपना बजट रखा, तो देवर लाइक कि आपको पता है फवाद खान ने हमारे साथ 5,000 में काम किया हुआ है, मायरा खान ने हमारे साथ इतने में काम किया हुआ है, तो हाउ कैन यू आस्क, हम बनाते हैं, हम अच्छा हाउ कैन यू आस्क सो मच मनी, आप हमारे साथ शुरू तो करें फिर आगे देखी जाएगी। मैं कहा ओके दैट साउंड्स रियली गुड सर, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 5,000 या 10,000 या 15,000 में या 5 लाख में काम करना चाहिए अभी फिलहाल। तो मेरा ख्याल है दौर बदल चुका है, उन्होंने स्टार्ट किया होगा अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में, सबने इतने में किया होगा। तो ऐसा नहीं तो होता है, बिल्कुल होता है वो आपको, बहुत से लोगों को ये गुमान होता है कि वो आपको लॉन्च कर रहे हैं। बहुत से लोग आपको ये कहते हैं कि देखें, मैं अब 14 साल बाद या 10 साल बाद भी मैं अगर ये सुनता कि नहीं ये आपका सीन चेंज कर देगी, सही, when you have already done नामालूम अफराद, you have already done ड्रामास जो कि अच्छा कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपके म्यूजिक करियर में you have done कोक स्टूडियो, तो उसके बाद अगर आपको कोई आके इस तरह का लॉलीपॉप देता है, तो मेरा ख्याल है कि फिर घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो वो खाएगा क्या, यू नो व्हाट आई मीन। तो बस कर देना आप इस तरह की चीजें देना आप। नहीं तो आई थिंक बिल्कुल ठीक है। एवरीवन हु इज प्रोबब्ली गोइंग इनटू द होल रेल्म ऑफ एक्टिंग जरूर शुरू में होता है, और ये भी एक आई वुड से इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, इट्स अ पार्ट ऑफ द स्ट्रगल कि यार बंदा इवेंचुअली जो है पैसे पे फोकस नहीं करता है, पर आगे जाके आपकी वर्थ बढ़ जाती है, तो देन ऑब्वियसली द मार्केट वैल्यू इज स्टेटेड एंड यू गो ऑन। अच्छा, अब ऑब्वियसली हमने अपना एक गोल्डन एरा देखा है, लोग बड़ा बोलते हैं कि यार एक गोल्डन एरा था हमारा टेलीविजन का, हम बड़े सोशल मीडिया पे शेयर्स मार रहे होते हैं जी, ओ माय गॉड ये टाइम था, ये ड्रामे थे, ये वो था। बहुत रिसेंटली मैंने एक हमारे जो सीनियर, हमारे लेजेंड अनवर मकसूद साहब हैं,
उन्होंने उनकी एक वीडियो आई और उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में ड्रामे बनते ही नहीं है, खत्म हो गए, they've gone, they've finished away. You are an actor of today's time. You've come in dramas. You've given powerful performances. Is it true what he's saying? And do you think that okay, are you wasting your time in an industry which has stopped growing? Do you agree with the legend what he's saying? Yeah, this is just a glitch? मुझे ऐसा लगता है, मैं पर्सनली भी एक पुराना आदमी हूं और मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं पुराने टाइम को, पुरानी चीजों को, अपने लेजेंड्स को। मेरी ख्वाहिश भी है कि मैं शायद उस ईरा में पैदा हुआ होता तो मैं बड़ा एंजॉय करता, मैं उस टाइम का काम करता। अच्छा, एक चीज इसमें मैं पॉइंट आउट जरूर करना चाहूंगा। अब जो तादाद हो गई, नुमान एजाज साहब और मैं एक इंस्टा लाइव सेशन में थे। नुमान भाई ने मुझसे ज्यादा वक्त देखा हुआ है और वो अभी भी जो न्यू जनरेशन के एक्टर्स हैं उनके साथ वो काम कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी तकलीफ दे हालत में एक जुमला कहा। उन्होंने कहा कि आजकल का एक्टर जब इस काम को दिहाड़ी बोलता है ना, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। जब वो कहता है ना कि मैं दिहाड़ी लगा के आया, वो इसको पैशन लेने की बजाय, राफे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऐसे बहुत से न्यू जनरेशन के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को जानता हूं जिनको होटल के कमरे को एंजॉय करना ज्यादा जरूरी है, जिनका सेट पे आके कहना कि एक सेकंड, कितने अभी वो एक तो लेट आए हैं या आई हैं, और आते ही उनका डिमांड क्या है, कितने बजे तक खत्म होगी। हाँ, एक्चुअली आई बी देयर, आई हैव अ पार्टी एक्चुअली, सो आई हैव टू गो, यू नो, सो कैन वी जस्ट रैप इट अप अर्ली। तो ये एक जनरेशन आई है जो बहुत इरिटेटिंग है, जो बहुत मायूस कुन है, जिनका मकसद ये नहीं है, मतलब आई स्वेयर ऑन गॉड, मैं इरफान खान साहब की डेथ हुई है, मैं अक्सर उनकी चीजों से मैं चीजें निकालता था और मैं सोचता था यार ये मैं यूज करूंगा यहां पे, ये मैं यूज करूंगा वहां पे। मैंने बहुत सीखा है। मैं जब भी मेरे अक्सर इंटरव्यूज में उनकी हयात में भी अक्सर इंटरव्यूज में मैं कहा करता था कि मैं उस लीग में फॉल करना चाहता हूं जिसमें इरफान खान है, मनोज बाजपेयी हैं, जिसमें नुमान एजाज हैं, जिसमें खयाम सरहदी साहब थे, यू नो व्हाट आई मीन। एक लीग है वो, सही है। तो हमारे लेजेंड्स जो थे, शफी मोहम्मद साहब थे, यू नो, मेरे अभी भी आई एम हैविंग गूज़बम्प्स, आई स्वेयर। तो मैं चाहता था मैं उस लीग में फॉल करूं, लेकिन मैं ये कह के रोता रहा उनकी वीडियोस देख के कि यार मुझे बहुत काम करना है, मुझे बहुत काम करना है। सही है, ठीक है। तो मैं इस लीग, शायद अनवर साहब जो हैं, मैंने उनको काम देखा, हमने उनको हमें बनाया, उन्होंने हम लोगों को उन्होंने बताया कि कैसे करना है, अदब क्या है, काम क्या है, खुशगुफ्तारी क्या है, अल्फाज का चुनाव क्या है, डायलॉग डिलीवरी क्या है, यू नो व्हाट आई मीन। उन लोगों से हमने बहुत सीखा है। वो लोग अगर ये कह रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं तो खामी है, कहीं तो खामी है। मैं जब कराची पहली बार गया था, मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं पहली बार कराची गया था जब, और मैं नया था, मैंने अभी एज एन ऑडियंस मैंने देखा शाहराह फैसल पे 2 बिलबोर्ड्स लगे हुए थे, दो ड्रामों के और बड़े चैनल्स के, और ऊपर भी बीच में एक लड़का है, साइड पे 2 लड़कियां हैं, और नीचे भी बीच में एक लड़का है, साइड पे 2 लड़कियां हैं। आई वाज लाइक नो, ये क्या है, ये क्या स्टोरी होगी कि जिस पोस्टर तक सेम है और 2 अलग चैनल्स के 2 अलग ड्रामास हैं, यू नो। तो अच्छा काम भी हो रहा है बहुत हद तक, बहुत लोग बड़ी मेहनत से भी काम करते हैं, बड़ी जांफशानी से काम करते हैं, बड़ी लॉयल्टी से काम करते हैं, लेकिन वहीं पे कुछ एक लीग एक्टर्स की या डायरेक्टर्स की ऐसी भी आई है जो वहां पर बैठकर ऑर्डर करते हैं कि आज का मेन्यू क्या होगा, आज खाना क्या है, आज हमारा डाइट प्लान जो हमने डिसाइड किया हुआ है उसके हिसाब से खाना आएगा। जो एक्टर्स हैं उनका मैंने आपको पहले बता दिया कि वो आते बाद में, पूछते पहले हैं कि खत्म कब होगा। जिनको रिहर्सल करने की तो आदत ही खत्म होगी ना हमारी। मैंने देखा आपकी और मेरी जो बादशाह बेगम पे डिस्कशन हुई थी, उसमें रिहर्सल एक मेजर पार्ट था कि हम बैठेंगे, हम रिहर्सल करेंगे, हम पेपर रीडिंग करेंगे, स्क्रिप्ट रीडिंग करेंगे। हम ये मैं नहीं सुनता, आप आते हैं, आपको बताया जाता है ये सीन है सर आज का, ओके नाइस। ये सीन रात को पता हो, एक्टर्स आपस में डिस्कस करें, आपस में उसके स्ट्रेसेस पॉसेस बनाएं, उसकी मूव्स बनाएं, कुछ तो करें। हम नहीं करते, हमने इसको दिहाड़ी बना लिया है। मुझे बहुत से लोगों ने कहा प्रोडक्शन हाउस आपको कैसे अप्रोच करता है, हम सब इन्वॉल्व है ना, प्रोडक्शन हाउस आपको कैसे अप्रोच करता है। मौसम भाई यार ये ऐसे है, ये वैसे, नहीं, एक्चुअली ना मैं ये कर रहा हूं, एक प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो अभी इनकी डेट्स नहीं है। और नहीं, हम उनसे बात कर लेते हैं ना, आप उनको ये दे दें, बीच में ये ऑफ आएगा, आप हमारे पास आ जाइएगा और फिर आप वापस चले जाइए। मैं इस चीज का कायल हूं कि एक वक्त में एक, ताकि मैं उस कैरेक्टर के साथ इंसाफ कर सकूं। मैं वहां से निकलूं वही लुक, वही शक्ल लेके, वही बाल लेके उस कैरेक्टर में भी चला जाऊं। मैं उस लीग में नहीं आना चाहता। मैं अक्सर कहा करता हूं, मैं उस लीग में नहीं आना चाहता जो लड़का सो के उठता है, उसके बाल जल बैक होते हैं।
ऐसे मैं उस लीग में नहीं आना चाहता एक्टर्स की, यू नो व्हाट आई मीन। हाँ तो प्रोडक्शन हाउस तक आपको ये कह रहा है कि आप यहां से हैं यहां पे आए, तो वो दिहाड़ी बन गई ना आपकी कि हम आपको इतने पैसे देंगे, हम प्रोडक्शन हाउस से खुद बात कर लेंगे, मैं उससे बात कर लूंगा, मैं उस डायरेक्टर से बात कर लूंगा, आपकी डेट निकाल लेंगे। सही मैं ऐसे नहीं काम करना चाहता। एक वक्त में एक आप इंसाफ करें। अब इंसाफ करना, करना के प्रैक्टिस करना, उनको मूव्स बनाना, लोगों को लगता है ये दकियानूसी बातें हैं, ये ओल्ड स्कूल है। सही। तो सही। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक लीग है जो जिसने जो काम को, जो शोहरत को इस्तेमाल करती है अपने उस लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए, उन मिलियंस फॉलोअर्स के लिए, उनको उस काम की पहले तो इज्जत करनी होगी। नोमी भाई ने, नुमान एजाज साहब ने एक बड़ा अच्छा, मैंने उनसे ये सीखी है बात, मुज़ाकरात के साथ काम करते हुए मैंने उनसे ये बात सीखी। मैं पहले भी प्रैक्टिस करता था लेकिन इतना हार्डकोर नहीं। वो अपने काम पे बावजू आते थे, अभी तक आते हैं। मैंने उनसे ये बात सीखी। अब मैं भी बावजू अपना काम करता हूं। मैं कुछ लिखने भी बैठता हूं, मैं पहले वजू करता हूं, फिर एक रब्बे सिद्नी इल्मा की तस्बीह करता हूं, खुदा से मांगता हूं और फिर लिखता हूं। अगर मैंने कोई गाना भी लिखना है, कोई कलाम लिखना है, कोई शेर भी लिखना है, मुझे एक्टिंग करने जाना है, मैं उस पर भी बावजू जाता हूं। मुझे कोई इंटरव्यू देना है, मैं उसकी भी कोशिश करता हूं। मैं अभी मसले से उठ के आपके सामने आया हूं। बताने का मकसद ये नहीं कि मैं बड़ा परहेजगार या नमाजी हूं। बताने का मकसद ये है कि इसकी इज्जत करें, इस काम की इज्जत करें। जो बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं ना लोग, वो भी उस लोहे की इज्जत करते हैं कि इसको पैर नहीं लगाना। वो कहते हैं इसमें जान है कि आपको बनाता है, वो तक उसकी इज्जत करते हैं। जो म्यूजिशियंस हैं वो कहते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट को बिना इजाजत के हाथ ना लगाएं, उसको पैर ना लगे, क्योंकि वो इसकी इज्जत करते हैं। हम अपने काम की इज्जत करना शायद भूल रहे हैं। अनवर मकसूद साहब इतने बड़े आदमी हैं, अगर वो कह रहे हैं तो फ्लॉ तो कहीं ना कहीं है। अनवर मकसूद साहब से मैं बड़ा फन्ने खान बनता था। आप अपने उस रूज पे जब आप होते हैं तो आपको लगता है कि मेरे में बड़ी एनर्जी है और मैं वो। हम अवार्ड्स, मैं और अनुशे अशरफ होस्ट कर रहे थे दुबई में, राइट। अनवर और मैं बड़े जोशो खरोश से, क्योंकि हम 4-5 दिन का हमारा मोमेंटम बना हुआ था। हम बैक स्टेज कवर कर रहे थे, हम पूरी उसकी मेकिंग कवर कर रहे थे। मैं बड़े फ्लो में था। अनवर मकसूद साहब आए, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर, और ये है वो है, पहली बार दुबई में हो रहा है और यूं है वो है, वो यहां पर लेकर आए। मैंने एक लंबी तमहीद बांधी, आपको कैसा लग रहा है। मैंने उनके आगे माइक किया। ही वाज लाइक, बेटा सब कुछ तो आप ही ने कह दिया। एंड ही लेफ्ट। I was like, whoa! I realized कि एक होस्ट की क्या जिम्मेदारी है। उस दिन मैंने सीखा, उस बेइज्जती से या उनकी उस एक जुमले से, कि बेटा सब कुछ तो आपने बोल दिया है। एंड ही लेफ्ट। और मैं अपना सा मुंह लेके रह गया। और उस दिन से मैंने सीखा कि एक होस्ट की क्या जिम्मेदारी है। होस्ट को एक सवाल है, उसने वो करना है मुख्तसरन। जब आप ही ने बता देना कि ये दुबई में आए हैं, ये हो गया है, पहली बार आया है, आपको कैसा लग रहा है, बड़े सितारे हैं, हम टीवी ने ये इनिशिएटिव लिया है, आपने सब तो बता दिया। तो उन्होंने क्या जवाब देना है कि हाँ हम टीवी ने इनिशिएटिव लिया है, हाँ हम पहली बार दुबई अवार्ड लेके आए, बहुत अच्छा लग रहा है। बस नो, यू जस्ट हैव टू आस्क हाउ यू फीलिंग सर, वी हियर इन हम अवार्ड्स, समथिंग लाइक दैट। दैट्स इट। तो बहुत कुछ है सीखने को, बहुत कुछ है। जैसे मैंने एक जो उड्डी जा मेरा एक कलाम है, उसमें एक मिसरा है कि बिन मुर्शद दे दर दर दुर दुर। जब आप बेउस्तादे होते हैं, when you have no teacher, when you have no guideline, आप असातिज़ा के पास, बुजुर्गों के पास बैठ के नहीं सीखते और आप अपने अंदर तुर्रम खान बनते हैं ना, तो राफे कोलैप्स ही होता है। फिर हमारे बुजुर्ग सही कहते हैं, कहीं ना कहीं तो लूपहोल्स हैं। और हम एज जनरेशन, आप और मैं भी देखते हैं, आपको भी पता है, हमें जब टेंट्रम्स देखने पड़ते हैं, आपको भी पता है, हम भी सफर करते हैं एज एन एक्टर, आप भी सफर करते हैं एज ए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हम सब सफर करते हैं और हमें पता है वो कौन लोग हैं, हमारे सामने शक्लें हैं सबकी। बिल्कुल ठीक है। नहीं तो Mohsin, you have pointed out a couple of things in this small thing. As an actor, it does seem like when a professional actor comes on set और वो चाहता है कि इस तरह की एक अच्छी सी environment हो, जब इस तरह के लोग अगर set पे आते हैं तो एक vibe destroy होती है, एक positivity destroy होती है, एक aura destroy होता है। And if you have encountered such people, I mean, I would say कि how have you come around it that कि आपकी परफॉर्मेंस खराब नहीं हो, सेट खराब, व्हाट वुड यू डू? आई मीन, यस आई एग्री, देयर आर पीपल लाइक देयर जो शायद सेट की एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय करते हैं। अभी मैं नाम भी लूंगा, मेरी एक और 2 एक्टर से भी बात हुई है रिगार्डिंग दिस थिंग। सम पीपल हैव सेड कि यार हाँ ऐसे होते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा कभी किसी एक्टर से सामना हुआ नहीं है, व्हिच आई थिंक इज नॉट ट्रू। पीपल आर देयर जो आते हैं जी, इतने बजे हम गाड़ी में बैठेंगे, इतने बजे हम निकलेंगे। हाउ डू यू वर्क अराउंड इट रिगार्डिंग दिस सच टफ पीपल? क्या आप अपना पॉइंट करते हैं कि यू स्पीक टू अ प्रोड्यूसर अबाउट दिस,
ideas, you raise a concern, you raise certain, लेकिन एक सिस्टम को सुधारने के लिए एक्टर का क्या रोल होता है एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या एक्टर सिर्फ आएगा बोलेगा नहीं यार देखो मैं अपना जस्ट लाइक यू सेड कि मैं अपना चेक कलेक्ट करूंगा मैं चला जाऊंगा, और डू यू इवन डिस्कस इट विद द प्रोड्यूसर कि यार हाउ कैन वी फिक्स दिस, हाउ कैन वी मेक श्योर ये जनरेशन थोड़ी सुधर जाए, थोड़ी लाइन, डू डू समथिंग अबाउट दिस और नॉट? मैं जिस भी सेट पे जाता हूँ मैं कोशिश करता हूं कि मैं डायरेक्टर साहब जो हैं उनके साथ ये डिस्कशन जरूर करूं एक बार, क्योंकि वो उस वक्त कैप्टन ऑफ द शिप होते हैं। बिल्कुल ठीक। उनको मैं ये रिक्वेस्ट जरूर करता हूं कि एक दफा रिहर्सल कर लेते हैं, एक दफा हम इसको पढ़ लेते हैं, एक दफा हम ये देख लेते हैं। अब हो क्या गया है कि जो हमारे डायरेक्टर्स भी हैं उनमें से मोस्टली जो हैं वो उन एक्टर्स के सामने बेबस हो जाते हैं। जब एक्टर डायरेक्टली कॉल कर देता है प्रोड्यूसर को या प्रोडक्शन हाउस के मालिक को कि see what is happening, I can't do this, I can work like this, what the going on and all, कपड़ों से लेके ये चीजें वो चीजें, तो उसमें बाकी सारे एक्टर्स, सीनियर एक्टर्स भी बेचारे ऐसे देख रहे होते हैं बेचारे बैठ के कि अब हम क्या करें। वो बेचारे बेबसी से इंतजार कर रहे होते हैं कि कब ये सारे टेंट्रम्स एक्टर या एक्ट्रेस के खत्म होंगे और काम शुरू होगा, या आज की शूट कैंसिल हो जाएगी इस वजह से कि बेबी के या बाबा के कपड़े सही नहीं बने, या बेबी को या बाबा को आज की शर्ट पसंद नहीं आई, या आज का खाना अच्छा नहीं आया, या आज गर्मी बहुत है सेट पे, जनरेटर क्यों नहीं चल रहा है, या सो मेनी थिंग्स। मेकअप आर्टिस्ट उनको पसंद, उनकी पसंद का नहीं है, सो मेनी थिंग्स। मेकअप आर्टिस्ट, दैट इज आल्सो हिलेरियस। सही है, हिलेरियस, इट इज हिलेरियस, कि मेरे पसंद का मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, सो मेनी थिंग्स। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे सीनियर एक्टर्स हैं इन्होंने कैसे कैसे एनवायरमेंट्स में काम किए हुए हैं, कैसे कैसे काम किए हुए हैं, कैसे कैसे इन लोगों ने यहां तक इंडस्ट्री को पहुंचा के खड़ा करके हमें सौंपा है। तो मेरे ख्याल में उन हाथों में चली जाए अगर ये कि जो इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो आपने मुझसे पूछा मैं क्या करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं एक्टर्स को कंफर्टेबल करूं जो मेरे साथ हैं, उनके साथ थोड़ा सा कंफर्ट लेवल थोड़ा बनाकर मैं उनको इस हद तक कन्विंस कर सकूं कि आओ लाइंस करते हैं। सही है। या अगर उनको कोई इशू आ रहा है जो कि रिगार्डिंग कपड़ों का ये है या वो है, वो जाहिर एक टेक्निकल इशू है, लेकिन अगर वो मुझसे पूछते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि हाँ हम इसको यूं जुगाड़ करके इसको ऐसे करके कि टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, अब मसला क्या होता है जब कपड़ों की बात आ रही है, लेट्स टॉक अबाउट द कपड़े, बहुत इशू होते हैं ये वाले भी। तो जब आपको स्टाइलिस्ट ने कहा है, उनसे मीटिंग के लिए कहा गया, आप नहीं आए उस वक्त, आप अवेलेबल नहीं थे उस वक्त, आपने उसको टाइम नहीं दिया, आपने कहा वो सेट पे ले आना। तो अब अगर सेट पे आए तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको सुधरने की जरूरत है, मुझ समेत हम सबको सुधरने की जरूरत है। हम थोड़े फ्लेक्सिबल होना शुरू हों, हम इस काम को सबसे पहले इज्जत देना शुरू करें जिस काम की वजह से हम इतनी सारी अय्याशी करते हैं, पार्टीज करते हैं, हैंगआउट्स करते हैं, हमारे राब्ते बनते हैं, हमारा स्टारडम बनता है, हमारे फॉलोअर्स बढ़ते हैं। हम उसकी इज्जत करना शुरू करें पहले। ठीक है, तो रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत देंगे, ऑब्वियसली दिस गिव्स यू मनी एंड इनकम, एंड ऑब्वियसली दिस इज समथिंग व्हिच इज कमिंग फ्रॉम गॉड, एंड उसकी इज्जत करनी चाहिए। ऑफ कोर्स। हमारे आई मीन you do say directors are the captain of the ship, and often actors look up to directors as being their I would say resources. लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर ये अनप्रोफेशनल दोस्तियां और अगर ये जो कॉलें हो रही होंगी प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को वगैरह, उस पे मतलब कि ये तो फिर सिस्टम थोड़ा फ्लॉड है। तो क्या हमारे डायरेक्टर्स भी बिल्कुल कंप्लीटली इस तरह से हो चुके, have they fallen back to the system, or are they now taking the producer's role in making sure the environment remains positive? क्या प्रोड्यूसर अभी भी अवेलेबल है, या वो बिल्कुल साइड पे चुका है, या डायरेक्टर ने टेक ओवर कर दिया है जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? एंड एज एन एक्टर डू यू थिंक दैट्स राइट फॉर दैट टू हैपन, पुटिंग सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो बेचारे बिल्कुल ही स्टार्स के ऑरा के सामने बेबस हो जाते हैं, राइट। वो चाहे नए हैं या पुराने हैं। कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो सीनियर डायरेक्टर्स हैं हमारे, जाहिर है कि वो हैंडल कर पाते हैं उन चीजों को, या वो बॉसी भी होते हैं और वो डोमिनेंसी भी होती है उनकी सेट्स पे, और उनके ऑर्डर को वो भी किया जाता है, एहतराम भी किया जाता है उनका, लेकिन वो बहुत कम है क्योंकि अब हमारे पास एक नई लॉट आई है एक्टर्स की भी, डायरेक्टर्स की भी। तो चूंकि इन एनी केस जब भी आप किसी नॉन फेस को लेते हैं एज एन एक्टर, तो उसका एक प्रेशर तो होता है डायरेक्टर पे, सही है, एक नए डायरेक्टर पे। ठीक। तो वो उसको हैंडल करते हुए फिर बेबसी में आता है, फिर
अगर वो बेबसी में नहीं आता और वो अक्खड़ होता है, फिर बदतमीजी होती है, फिर सेट का माहौल खराब होता है, तो ऐसे माहौल हैं तो। और ये जो कॉल्स वाला सिलसिला है प्रोडक्शन हाउस को या डायरेक्ट मालिकान को कॉल्स करने वाला सिलसिला है, हाँ ये धमकी डायरेक्टर के सर पे तलवार बन के नहीं लटकनी चाहिए। सही है, मुझे भी ऐसा लगता है। बात वही है कि प्रोड्यूसर को भी चाहिए। मुझे ना एक फील आती है कि शायद हम, देखिए ये एक प्रोफेशन है ना, हम काणे नहीं है, हम एक दूसरे का कुछ देना दिलाना नहीं है हमने, मतलब हम इतने बेचारे हो जाते हैं कि अच्छा ये कर लें, अच्छा वो कर, नहीं यार, मैं आपको अपनी सर्विसेज दे रहा हूं तो आप मुझे उसके एवज एक स्क्रीन दे रहे हैं, आप मुझे पैसे दे रहे हैं, मेरी रोजी रोटी दे रहे हैं आप मुझे, तो मुझे इक्वली आपको रिस्पेक्ट करना है, आपको इक्वली मुझे रिस्पेक्ट करना है। प्यार मोहब्बत से भी तो हो सकता है। कोई चीज नहीं सही आई सेट पे, आज खाना अच्छा नहीं आया, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। मैंने ऐसे एक्टर्स देखे हैं जो अपने सिगरेट तक प्रोडक्शन के पैसों से मंगवाते हैं। अरे कम ऑन यार, हद है यार, मतलब हद है। चले वो इसका तो अब आई होप, आई नो, आई बीन इन द एनवायरनमेंट, आई नो ऐसा होता है, कभी कभी करना पड़ता है, कभी कभी नहीं करना पड़ता है, कभी कभी काम निकालना पड़ता है, कभी दोस्ती यारी होती है। you played a very difficult role in मेरी गुड़िया as being a child molester. बड़ा एक हमारे पास एक है कि भाई एक बंदा अगर इस तरह का कैरेक्टर प्ले करता है तो उसके ऊपर मीन people start associating you with such roles and people like यार he's only played this role. Were you not scared at that time that when you were accepting that role and doing it, इस तरह की आपके पास reservation आ सकती है कि यार इसको इसी तरह के कैरेक्टर्स देने चाहिए? And what sort of feedback did you get playing that specific actor and how tough was it for you to portray and coming back as a feedback, because psychologically आपको जरूर इफेक्ट हुआ होगा playing such a role and obviously you were going through loss and grievance at that time as well, so what were your feelings? सबसे पहले जब डॉक्टर अली काजमी साहब जो कि प्रोड्यूसर भी थे बिग बैंग का वो ड्रामा था, और फहद और अली हसन, इन तीनों की रिजर्वेशन यही थी कि क्या मोहसिन ये रोल करेगा, सही, क्योंकि उससे कुछ अरसा पहले ही आई लॉस्ट माय डॉटर। Yes. So they were like कि क्या मोहसिन ये रोल करेगा। अली हसन ने मुझसे डायरेक्टली फिर पूछा कि ये रिजर्वेशन है, व्हाट डू यू से? मैंने कहा मैं डेफिनेटली करूंगा, मैं शायद मेरी बेटी हयात भी होती तो भी मैं जरूर करता, और अब तो मैं बिल्कुल करूंगा उन बच्चियों के लिए, उन बच्चियों के हक में कि जो बीइंग अ फादर ये मेरी जिम्मेदारी है। बीइंग एन आर्टिस्ट से ज्यादा मुझे लगता था कि बीइंग अ फादर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे ये रोल करके लोगों को अवेयर करना है, क्योंकि उस ड्रामे का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि मुझे एक एक्टिंग मार्जिन बहुत था उसमें, उसका मकसद ये था, अगर आप वो ड्रामा देखें ओवरऑल तो उसमें सोनिया हुसैन एक बहुत मजबूत वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हुई नजर आएंगी आपको। उसमें आपको ये दिखाई देगा कि एक माँ को कैसा रिएक्ट करना चाहिए जब उसको पता चलेगा कि उसका बेटा एक रेपिस्ट है, एक भाई को कैसे रिएक्ट करना है, एक बहन को कैसे रिएक्ट करना है, एक बीवी को कैसे रिएक्ट करना है, उसके इर्द गिर्द के माहौल को कैसे रिएक्ट करना है, कानूनी इदारों को कैसे रिएक्ट करना है, तो वो एक बड़ी जिम्मेदारी वाला प्रोजेक्ट था। और एज एन एक्टर मुझे बहुत जरूरी था कि मैं वो किरदार करूं, मैं नहीं करता कोई और कर लेता। तो मुझे किसी किस्म का, एज एन एक्टर मुझे कभी किसी किस्म का खौफ नहीं आया, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत कॉमेडी कर चुका था, मजाकरात, नामालूम अफराद, 4 मैन शो, BNN, बहुत कॉमेडी हो चुकी थी। फिर उसके बाद मुकाबले में मैंने बहुत मेलो, बड़ा अच्छा बच्चा वाला रोल भी कर लिया हुआ था, लवी डवी हीरो वाला भी। तो आई थॉट कि व्हाई नॉट, मतलब मैंने जैसे पहले किया कि मेरी डायरेक्शन बहुत क्लियर है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे हीरो से ज्यादा एक्टर बनना है। सही। मुझे जैसे बाजी भी अगर आप देखेंगे, जब साकिब मलिक साहब ने मुझे बाजी ऑफर की थी तो उन्होंने कहा था कि ये फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है, मेल ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन इसमें कैरेक्टर एक्टिंग है, ये एक कमर्शियल कम पैरेलल सिनेमा फिल्म है, मसाला है इसमें सारा, तो ये इस तरह की है। तो मैंने कहा मुझे कैरेक्टर बताएं क्या है, मेरी फिल्म नहीं थी वो, हालांकि उससे पहले मैं अपनी फिल्म कर चुका हूं जो मेल ओरिएंटेड फिल्म्स हैं, लेकिन मुझे क्योंकि उसका कैरेक्टर पसंद आया तो ये मेरी डायरेक्शन बहुत क्लियर है कि मुझे किस लीग में फॉलो करना है एक्टर्स की। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, मेरी एक लीग है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं कि यार मुझे ये करना है, तो उसमें रहते हुए एज एन एक्टर भी मुझे कभी ये फील नहीं आया कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे करना था और मैंने किया। और हाँ, हमारे यहाँ चाप लगती है, फीडबैक उसका बहुत खतरनाक था, मुझे बहुत से लोगों को बहुत पसंद आया, और लोग ये कहते थे कि हमें आपसे नफरत हो रही है और शायद यही आपके किरदार की कामयाबी है। बिल्कुल सही। आप हम मतलब लोग कहते थे हमारे सामने आ जाए, गोली मार दें इसको, हम इसको जूते मारें इसके गले में हाथ, दे वर लाइक दिस।
लेकिन इन अ पॉजिटिव वे। तो वो ये कहते थे कि ये आपके किरदार की जीत है, एज एन एक्टर यू प्लेड इट सो वेल कि हमें रियल लगने लग गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत से लोगों ने उस वक्त ये भी कहा कि ऑस्कर वर्दी परफॉर्मेंस दे दी है मोहसिन ने, और ये तो एज एन एक्टर मैंने बहुत चेरिश भी किया उस चीज को, और एज अ फादर और एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी मैंने अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल होते देख के बहुत सेटिस्फेक्शन भी फील की। ठीक है। So then obviously in सारी strong performance को लेके you've obviously won awards as well. You are very vocal even about the judging system and the award system in Pakistan as well. And you have doubted their mechanisms and everything. आपको लगता है कि हमारी एक merit पे system चल रहा है, ये भी favoritism पे है towards artists and actors combined? आई नो आप जिसकी बात कर रहे हैं, हाँ, मेरी गुड़िया को नॉमिनेट नहीं किया था। अच्छा, उसमें मैंने ना एक आखिरी जुमला लिखा था कि थैंक यू फॉर मेकिंग मी बिलीव के पैसे कमाओ और घर जाओ, पता नहीं ऐसा कोई जुमला था। तो उसका उन्होंने जो तशरीह की थी, जिन लोगों को मैं एड्रेस कर रहा था, उन्होंने उसकी कुछ गलत सी तशरीह कर ली। उनको लगा कि मैं कह रहा हूं कि आप लोग ब्रांड से पैसे कमा रहे हैं और घर जा रहे हैं। नहीं, मेरा मकसद ये था कहने का कि आप लोगों ने मेरा ये स्ट्रॉन्ग बिलीव, जो मुझे पहले भी लगता था कि आई एम नॉट हियर टू मेक फ्रेंड्स, आई एम हियर टू मेक मनी, तो मैं पैसे कमाऊंगा, लेट्स प्ले प्रोफेशनली। तो मुझे ऐसा, मैंने कहा कि मेरा ये बिलीव आपने और स्ट्रॉन्ग कर दिया कि मैं बस अपना काम करूं, पैसे कमाऊं और घर जाऊं, अपना किचन विचन चलाऊं। मैं उन लोगों को नहीं कह रहा था। तो एक तो पहले मैंने कहा, मैं ये क्लियर कर दूं कि मैंने उन लोगों को ये नहीं कहा था कि आप ब्रांड से पैसे बटोरते हैं और चलते बनते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये कि फेवरेटिज्म की जहां तक बात है, जब आपका कोई फेवरेट जिसका कोई प्रोजेक्ट नहीं आया होता पिछले साल में और आपको उसको अवार्ड देना ही है, तो आप एक कैटेगरी बना लेते हैं आउट ऑफ नो वेयर। आप एक सही है, बिल्कुल ठीक है। तो आप एक कैटेगरी बना लेते हैं, बेस्ट फेस ऑफ द ईयर, बेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर, समथिंग लाइक दैट, तो आप यू जस्ट कम अप विद कैटेगरी जब आपके किसी फेवरेट का प्रोजेक्ट नहीं आया होता पिछले साल में। तो हाँ, होता तो है। अभी हम मुझे ऐसा लगता है जैसे चैनल्स हैं, उनके अपने अवार्ड्स होते हैं, वो अपने ड्रामास को देते हैं। एक ही अवार्ड शो है जो कि इन जनरल होता है, और उसमें फेवरेटिज्म झलकता तो है। ठीक है। अच्छा, coming to a little bit of film industry, you've been a film star as well, and Pakistan film industry is growing, and हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री आई थिंक हैज रीच्ड अ वेरी ग्रोइंग पॉइंट, और भी इंशाल्लाह बढ़ेगी और बढ़नी भी चाहिए। टेक्नोलॉजी भी स्ट्रांग हो रहे हैं, कंटेंट वाइज भी हो रहे हैं। आपकी नई फिल्म भी आ रही है, वंस अपॉन अ टाइम इन कराची। आई हैव सीन द ट्रेलर एज वेल। Can you shed some light as to what it's about? I saw the trailer. How are you finding it? When is it coming out? And also another thing, comparing the two mediums when it comes to television and film. Obviously film मेरे ख्याल से बहुत सीरियस एक मोड होता है, वहां पे लोग भी कुछ सीरियसली काम कर रहे थे, ज्यादा प्रोफेशनलिज्म वहां पे चलती है। तो वुड यू वांट टू द बोथ मीडियम्स टू बी एट द सेम लेवल, के टेलीविजन फिल्म दोनों एक ही लेवल पे हो जाए और उसी तरह का मैकेनिज्म दोनों की तरफ हो, या क्या दोनों की तरफ सेम फॉलो हो रहा है? सो जस्ट टू क्वेश्चंस ऑन दैट। सबसे पहले तो वंस अपॉन अ टाइम इन कराची बिल्कुल आ रही है। अबू अलैहा उसके डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इससे पहले 2 फिल्म्स की हैं, और इट्स अ पैरेलल सिनेमा की फिल्म। और क्योंकि मैं मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में पैरेलल सिनेमा आए, जैसे मंटो बनी, जैसे माहे मीर बनी थी, जैसे हमारे वो एक बॉक्सर पे फिल्म बनी थी जिनकी बायोपिक थी, क्या नाम था उनका? शाह, एग्जैक्टली, जैसे वो थी। बायोपिक्स बननी चाहिए पाकिस्तान में। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि कमर्शियल सिनेमा, रोम कॉम्स, कॉमेडी के साथ साथ, एक्शन के साथ साथ कहीं कहीं पैरेलल सिनेमा भी ग्रो करे। तो ये एक पैरेलल सिनेमा की फिल्म है, ये कमर्शियल सिनेमा की फिल्म नहीं है, तो आपको इसकी पैकेजिंग भी कुछ उसी तरह की लगेगी। और मैंने पहली बार इनके साथ काम किया, और मेरा ये मानना है कि हम सब अपनी अपनी कैपेसिटी में काम करते हैं, हम सबको एक दूसरे को पहली बार का मौका देना ही चाहिए। मुझे भी किसी ने पहली बार मौका दिया था, नबील कुरैशी को भी किसी ने पहली बार मौका दिया था, नदीम बेग साहब को भी किसी ने पहली बार मौका दिया था। तो ये सारे इसी तरह से स्टार्स बनते हैं, या इसी तरह अच्छे डायरेक्टर्स बनते हैं। हम अपनी अपनी गलतियों से सीखते हैं। टीजर अभी आया, ट्रेलर अभी आना है, टीजर आया है। टीजर में
जहां कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ फ्लॉज भी हैं। एज एन एक्टर मैं बात कर रहा हूँ। आई होप के अबू लहब अपने काम को मजीद बेहतर भी करेंगे, वक्त के साथ सीखेंगे भी और अच्छी चीज सामने आएगी। फिल्म बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट के साथ है। जो मेरा इसको साइन करने का मकसद था वो था कि इसका स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैं हमेशा, आप मेरे ड्रामा करियर को भी देखते हैं, एंटरटेनमेंट साथ साथ चल रही है, लेकिन ड्रामाज में मैंने कोशिश की कि मैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड चीजें करने की कोशिश करूं। अगर आप पहला ही ड्रामा मेरा देखें मुकाबिल, वो भी चाइल्ड अब्यूज के हवाले से ही था। आसिफ रजा मीर साहब थे, कुबरा खान थी उसमें, वो भी इसी इशू पे था। तो इस फिल्म का जो प्लॉट है वो बड़ा स्ट्रांग है। वो उन लोगों से रिलेट करेगा, बहुत सा एक मखसूस और बड़ा एक वसी तबका है पाकिस्तान का और बल्कि दुनिया का, जो उससे रिलेट कर पाएगा। जो किरदार मैं उसमें निभा रहा हूं और जिस मौजू को हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो इट्स अ पैरेलल सिनेमा की फिल्म, जिसमें आपको कोशिश कर रहे हैं कि पैरेलल सिनेमा भी हम पाकिस्तान में दिखा सके लोगों को। ऑडियंस के टेस्ट बड्स जो हैं वो शायद डेवलप हो सकें इसके साथ, और वो इस चीज को डाइजेस्ट कर सकें। वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, अभी नहीं करते, क्योंकि उनको जिस चीज की हमने फिलहाल आदत डाली है उसमें हम सभी हैं ऑफ कोर्स, वो भी जरूरी है एंटरटेन करना उनको। शायद ये फिल्म बहुत ज्यादा बिजनेस ना कर सके, शायद ये फिल्म ऑडियंस को उस तरह कैप्चर ना कर सके, लेकिन मुझे खुशी ये होगी कि पैरेलल सिनेमा जब बन रहा था या कोशिश कर रहा था क्रॉल करने की, तो मैं उसका हिस्सा था। ठीक है, इंशाल्लाह जब पाकिस्तान में पैरेलल सिनेमा मजीद बढ़ेगा और हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन जाएंगे, हाँ, कि हम हमारे हमसाये मुल्क की तरह हम पैरेलल, क्योंकि उनकी पैरेलल सिनेमा की फिल्म ज्यादा अच्छी होती हैं और हम सब जानते हैं। वो चाहे फिर अंधाधुंध हो, चाहे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर हो, चाहे तो उनका वो ज्यादा स्ट्रांग है कमर्शियल सिनेमा से। तो मेरी भी एक बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में ये सिनेमा आए। और दूसरा, आपने बात की क्योंकि अभी फिल वक्त तो हमारे वही एक्टर्स हैं जो फिल्म्स में भी काम कर रहे हैं। हमारे पास ऐसी कोई लीग है नहीं। शान शाहिद साहब हैं जो सिर्फ फिल्म्स करते हैं, फवाद भाई हैं, फवाद खान साहब, वो सिर्फ फिल्म्स कर रहे हैं फिल वक्त अब आकर। तो कुछ एक्टर्स हैं जो ऐसे करें, वरना तो जाहिर है कि हमारे वही एक चीज है जो हम फहद मुस्तफा साहब भी जो हैं वो भी सिर्फ शो करते हैं या फिल्म करते हैं, वो टीवी ड्रामास नहीं करते। लेकिन मोस्टली एक्टर्स जो हैं हमारे पास वो टीवी और फिल्म के सेम है। तो अभी इंशाल्लाह आई होप के आने वाले वक्तों में मजीद हम इन चीजों को बेहतर करेंगे। हम एज एन इंडस्ट्री ग्रो कर रहे हैं। ड्रामा इंडस्ट्री तो हमारी माशाल्लाह से हमेशा से बहुत स्ट्रांग रही है, हमारी बैकबोन रही है इंडस्ट्री की। तो वो तो मीडियम हमारा स्ट्रांग है। फिल्म्स में बहुत से लोग नए एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है उनका काम देख के। कुछ हमारे सीनियर्स हैं जिन लोगों ने, वो भी कभी जूनियर ही थे लेकिन फिर भी उन्होंने काम कर करके अब मतलब वो ऑथेंटिसिटी उनकी है कि हाँ भाई इनकी फिल्म है तो अच्छी ही होगी टाइप का एक फील आ गया है। तो उनके सेट्स पे का माहौल और होता है। जैसे नबील के सेट पे जब मैं होता था तो मैं यही कहता था, मैं कहता था तुम लोग मेरी आदतें बिगाड़ोगे, क्योंकि ऐसा माहौल हमें बाकी सेट्स पे नहीं मिलेगा फिर जाके, क्योंकि उनका बड़ा प्रोफेशनल माहौल होता है फिल्म वाला प्रोडक्शंस का, और बड़ा अच्छा माहौल होता है। और वो आपको बड़ा पैम्पर्ड भी करते हैं, आपको अच्छे एनवायरनमेंट में काम करते हैं, आप पे बर्डन नहीं आता, आपको ऐसा नहीं लग रहा होता कि आपको डंडे के जोर पे काम करवाया जा रहा है। आप एंजॉय करते करते फिल्म कब खत्म होती है आपको पता भी नहीं चलता। सही है। तो उसमें अच्छा काम भी निकल आता है। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हम फिल्म्स में भी मजीद प्रोफेशनल होना शुरू होंगे, चाहे वो हमारे टी बॉयज हैं या चाहे हमारा कैमरा क्रू है, वो अभी तो ड्रामा का ही है ना फिल वक्त। तो आहिस्ता आहिस्ता हम बेहतर होते जाएंगे इंशाल्लाह। सही है, सही। अच्छा, I do understand that you've given me a bit of crooks about everything, your journey and how it has been and how professional or unprofessional it has been, and you are one of the actors who are going forward with lots of content. Towards the end, में छोटी सी, obviously I don't want to get into any controversy. We have been affiliated with the project for a while as well. और मैं अपना टाइम बताऊंगा। बादशाह बेगम हमारा एक प्रोजेक्ट था which you've been part of and you were accustomed to. We spoke about it, there were times of doing it, and छोटी सी incident हो गई थी जहाँ पे lots of people came to me and they started asking me that what is your opinion. तो मैंने बोला यार कि देखें, बात ये किसी का पर्सनल मैटर है तो उसमें मुझे कोई राइट नहीं, मैं कोई बोलूँ या ना बोलूँ, चाहे मैं प्रोड्यूसर हूँ, चाहे मैं डायरेक्टर हूँ, चाहे मैं राइटर हूँ, एंड आई डिसाइडेड नॉट टू टॉक अबाउट इट, एंड ड्यू टू पर्सनल रीजंस आई डिसाइडेड टू डिले द प्रोजेक्ट। मैंने बोला राइट नाउ लुकिंग एट द वायबिलिटी ऑफ द मार्केट, आई डोंट थिंक डिजिटल जो है वो ग्रो हो रहा है, जो भी हो रहा है, आई विल पुश इट फॉर अनदर ईयर। लेकिन और and at that time I remember I didn't message you, but I gave Ali Hassan a message because I understand he's a close friend of yours. मैंने बोला यार I don't know what he's going through. I hope he gets out of it, and this is a very personal thing. और मैं किसी से बात नहीं करूंगा। Lots of people message me. मैं बोला नहीं यार, किसी का एक पर्सनल मैटर है, उनको, and obviously unfortunately इंडस्ट्री की ट्रेजेक्टरी ये है
कि व्हेन यूर अ सेलिब्रिटी, व्हेन यूर अ फिल्म स्टार एंड ड्रामा स्टार, तो ये कुछ चीजें हो जाती हैं जहां पे आपको पोर्ट्रे करना पड़ता है। लेकिन जो मैंने ऑरा देखा, जो मैंने फ्रेटर्निटी देखी, जो मैंने इंडस्ट्री देखी, द वे दे केम फॉरवर्ड एंड द वे the PR campaigns and the PR managers started putting up statuses and pictures up just to highlight that we have a feedback regarding this, वो मुझे थोड़ा ऑफ लगा। मतलब कि क्या ये अब ये नॉर्म बन गया है? लुक, आई मीन मुझे मेरा राइट नहीं है, हर किसी का अपना अपना पर्सन है, जिस तरह से भी जो गलत है सही है अल्लाह के सामने होगा, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। बट ये जो एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, मतलब कि हम सब ये मिल जाएंगे और हम एक कोशिश करेंगे कि इसको हम साइडलाइन कर दें, बैन कर दें। This I thought was completely coming out of nowhere, and production houses gang up and actors gang up. I don't want to divulge into on the details. It is a very personal matter, but I want to speak about the professionalism of the industry. आप हॉलीवुड देखते हैं, आप बॉलीवुड देखते हैं, आप हर इंडस्ट्री देखते हैं जहां पे इस तरह की जो भी चीज होती है वो टैबलॉइड में, मैगजीन में छप के खत्म हो जाती है, किसी का चक्कर होता है। For an actor to come like this, for actors to come like, how did you feel? Because I'm pretty sure ओवरनाइट कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने दरवाजे बंद कर दिए होंगे, फोन कैंसिल कर दिए होंगे, रास्ते काट दिए होंगे। मैं सिर्फ जस्ट वेरी ब्रीफली ऑन दिस टुवर्ड्स द एंड टॉक अबाउट इट, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर एज एन एक्टर रुकावटें आई होंगी। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? बिकॉज मेरा यही कहना है कि इट डजंट अफेक्ट मी एज अ प्रोड्यूसर। मेरी रिलेशनशिप है, मैंने एक्टर को देखा है, ये वक्त गुजर जाएगा, मैं अभी भी काम करूंगा। बट रिगार्डिंग द फ्रेटर्निटी, द सेम फ्रेटर्निटी दैट ब्रॉट यू अप, आर यू होपफुल? क्या ये इसी तरह ही चलेगा? सॉरी मैंने लंबा कर दिया, लेकिन थोड़ा सा जरूरी है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज पे एक आजकल का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, उसमें है एक लफ्ज आ गया ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग पे क्या है? एक साहब का मैंने अभी स्टेटस देखा, हमारे बड़े अच्छे सिंगर हैं सीनियर, उन्होंने एक स्टेटस लगाया कि हम हमेशा लोगों के मरने का इंतजार करते हैं कि कब ये बात ट्रेंडिंग में आए और हम उस पर तस्वीर लगा के एक स्टेटस लगाएं दुखी सा, जैसे इरफान खान साहब और ऋषि कपूर साहब की डेथ के बाद हुआ। हम अपनी पीआर कंपनी को कहते हैं, या आपकी पीआर कंपनी आपको कहती है कि ओ ये ट्रेंडिंग में है, इस बारे में आप भी कुछ कह दें। तो ये एक चल चुका है, एक मामला एक चल चुके हैं, एक ट्रेंड चल चुका है। उसकी तस्दीक करना, आपको पता है बहुत से मैगजीन्स ने, बहुत से ब्लॉगर्स ने ये तक लिख दिया दैट कोर्ट फाउंड मी गिल्टी, जबकि कोर्ट ने मुझे क्लियर कर दिया। मैंने वो मुबशर लुकमान साहब के शो पे जाके वो सारी चीजें दिखाई, चीजें ऑन पेपर, पुलिस रिकॉर्ड्स और ये वो इन्वेस्टिगेशन कि ये हुआ है। लेकिन दे गेव द जजमेंट, फाइनल जजमेंट, और उन्होंने मिस कोट करके, और वो बड़े नोन मैगजीन्स हैं जिनको मेरे लॉयर ने मुझे कहा कि वी कैन सू देम। तो I said कि no, it's okay, that's fine, let it go. Because in this whole situation I was so quiet. I was feeling like I'm on a break. To be very honest, I'm on a break. I was sitting back and watching everyone कि क्या क्या करता है कौन कौन। सही है। मैं सिर्फ चेहरे देख रहा था और पर्दे हटते देख रहा था, because I knew the truth behind it. मैं सिर्फ लीगल वॉर देख रहा था कि वो क्या हो रही है, क्या कब जाना है, क्या करना है, और उसका एंड सबने देख लिया। किसी सिंगल ब्लॉगर ने सॉरी नहीं किया कि हमने मिसकोट किया और आप उसमें से क्लियर हो गए, ओके वी आर सॉरी। किसी सिंगल ब्लॉगर ने ये नहीं छापा कि ओके मोहसिन गॉट क्लियर्ड फ्रॉम द कोर्ट, नथिंग प्रूव्ड। ठीक है, किसी ने ये नहीं छापा क्योंकि उसमें मसाला नहीं था। सही है। उसमें मसाला नहीं था, और मोहसिन ने पैसे भी नहीं दिए ना किसी को। मोहसिन ने कहा भी नहीं किसी को कि यार ये मेरी खबर लगा दो जरा। लेकिन बहैसियत सहाफी, बहैसियत जर्नलिस्ट, आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप ये करते। मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूं। मैं उस दिन देख रहा था संजू। सही है। अब संजू में संजय दत्त कहते हैं कि मेरे पे जब कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया सारे इल्जामात से कि संजय दत्त दहशतगर्द नहीं है, उसके घर से कोई बम से भरा हुआ ट्रक बरामद नहीं हुआ, सिर्फ एक AK-47 उसके पास बिना लाइसेंस के थी, उस पर उसको सजा हो रही है। कहते किसी चैनल ने नहीं चलाया, एंड दिस इज फैक्ट। संजय दत्त की वो खबर किसी चैनल ने नहीं चलाई कि उसके ऊपर मेजर चार्ज जो था वो था दहशतगर्द है, ये मुल्क द्रोही है, ये इसने मुल्क के खिलाफ बगावत की, और उसके ऊपर से वो चार्ज खत्म कर दिए कोर्ट ने। बिल्कुल सही। और कोर्ट ने कहा इसके पास AK-47 थी बिना लाइसेंस के, इसको सजा उसकी मिलेगी 6 महीने की बस, या जितने भी महीने की। कहते हर चैनल ने क्या खबर चलाई,
कोर्ट फाउंड संजय दत्त गिल्टी। सही। क्योंकि हाईलाइट ये थी और इसमें मसाला था कि ओ संजय दत्त गिल्टी है। मैंने अपने बारे में सेम यही खबर देखी, सब चैनल ने जिस दिन कोर्ट ने मुझे क्लियर किया उस दिन सब ने कह दिया, और उसमें एक शिक थी, वो ये थी कि शायद इनके दरमियान तल्ख कलामी हुई होगी। ठीक है। शायद इनके दरमियान ये पुलिस ने जिमनी में अपनी लिखा कि शायद इनके दरमियान तल्ख कलामी हुई हो, ये माना जा सकता है क्योंकि मीडिया का प्रेशर था, एनजीओ इन्वॉल्व हो गई थी, बहुत हाइप हो गई थी, तो पुलिस ने अपने सर नहीं लिया, उन्होंने कह दिया कि ये है, हो सकता है, शायद ये हुआ। ओके, बाकी चीजें कोई क्लियर नहीं हुई क्योंकि इनकी फोन की लोकेशन मैच नहीं कर रही है। जो भी पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई 2 दफा हुई, हाई प्रोफाइल केस था। किसी चैनल ने नहीं चलाया कि मोहसिन अब्बास हैदर को क्लियर कर दिया कोर्ट, किसी चैनल ने नहीं चलाया, सबने चलाया मोहसिन अब्बास हैदर फाउंड गिल्टी, क्योंकि इस हेडलाइन में मसाला था और नीचे था कि वो कोर्ट ने कह दिया कि शायद इनके दरमियान तल्ख कलामी हुई। शायद, जिसको तो किसी ने नहीं किया। अब एज एन एक्टर या एज अ फ्रेटर्निटी मेंबर मुझे इनसे ये जरूर रहेगा कि कल को खुदा ना खास्ता किसी और के साथ, अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि ये बड़ा मशहूर और बड़ा आसान तरीका है। मेरी वो बहनें, मैं हमेशा कहा करता हूं, मेरे घर में इतनी खवातीन है, मैं पला बड़ा हूं, मैं इकलौता बेटा था, मैं पला बड़ा हूं 2 बड़ी बहनों में, खाला ने अडॉप्ट कर लिया, मां ने पाला, कजन्स, सिस्टर्स और ये वो बहुत सारी औरतों में पला बड़ा हूं। आई नो द फैक्ट के हाउ टू रिस्पेक्ट और हाउ टू ट्रीट अ इवन वुमेन, उनके साथ कैसे गुजारा करना है, उनके मूड स्विंग्स क्या होते हैं, वो कैसे करती हैं, कब क्या, मुझे पता है सब, मैं देख के बड़ा हूं। तो गुजारिश सिर्फ ये थी कि तहकीक बहुत जरूरी है। पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के पास नहीं है, हम जज करना शुरू कर देते हैं, किसी को भी जज करना शुरू कर देते हैं, वो चाहे खलीलुर रहमान कमर साहब हो, वो चाहे फिरदौस जमाल साहब हो, वो चाहे मैं हूं, वो चाहे नेहा धूपिया हो, रोडीज में बैठ के कुछ कर दे, वो कोई भी हो, व्हाटसोएवर, वो कोई भी हो, हम उसको जज करना अपना कानूनी, मजहबी, मुआशी जो भी फर्ज समझते हैं कि ओ हाँ इसका कुछ हाथ आया, चलो जुड़ जाओ इसको। तहकीक कर लो, पहले तहकीक कर लो। और दूसरी बात, हाँ फोन बंद हुए, हाँ मैसेजेस का जवाब देना बंद हुआ, हाँ बहुत से लोगों ने मुझे अनफ्रेंड कर दिया, हाँ बहुत से लोगों ने आके मुझसे माफी मांगी, बहुत से एक्टर्स ने आके, एक्ट्रेसेस ने आके मुझे कहा कि ओके वो हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ, वी आर सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, हाँ 12 और 13 फरवरी की रात को करीब 10 से 11 बजे मेरे घर के दरवाजे पे आके उन खातून ने मेरे बेटे को गोद में उठाए हुए मुझसे माफी मांगी। Nobody knows this, nobody knows this, और मुझे नहीं बताना था किसी को। And if we're talking about this ना, मुझे मुबश्शिर साहब ने भी कहा कि we should talk about it। तुम खामोश रहोगे, लोग इस खामोशी का मतलब निकाल लेंगे कुछ और, कोई चैनल नहीं चलाएगा, कोई चैनल की रिपोर्ट्स नहीं दिखाएगा कि ओ मोहसिन अब्बास हैदर के पास अब तो प्रूफ्स हैं कि वो क्लियर हो गया है। किसी चैनल ने नहीं चलाया। लोग लिखना शुरू कर दिया, एक्स स्टार, नोटोरियस और पता नहीं क्या क्या लिखना शुरू कर दिया लोगों ने, और मेन ब्लॉगर्स और मेन मैगजीन्स ने। मुझे किसी से गिला नहीं है क्योंकि मेरा तवक्कल बड़ा मजबूत है, मैं बिल्कुल सुकून में हूं, मैं बिल्कुल पीस में था, मेरा तवक्कुल इतना मजबूत है कि लोगों ने तो काम नहीं देना ना मुझे। अभी तक का जो करियर है मैंने तो प्लान नहीं किया था, ऊपर से प्लान होके आया था, मुझे टास्क मिला था, मैंने वो टास्क कंप्लीट किया, मुझे अल्लाह ने रिवॉर्ड दिया। मैं एक वीडियो गेम का हीरो समझता हूं अपने आप को कि मैं एक वीडियो गेम में हूं, मुझे स्टेज पार करनी है, उसके बाद मुझे रिवॉर्ड मिलना है, और ऐसा ही होता आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये भी कोई मेरी किसी गुस्ताखी की पकड़ होगी, मेरी किसी नाअहली की, मेरी किसी ऐसी चीज की पकड़ होगी जिस पे अल्लाह ने मुझे झंझोड़ के कहा वापस किधर, ये क्या किया तुमने, उसकी पकड़ होगी। लेकिन उस पे ये क्या हुआ, मेरे और मेरे अल्लाह का डायरेक्ट मामला हो गया। सही है, मैं अगर दूसरी शादी करना चाहता हूं, मेरी फर्स्ट मैरिज अगर नहीं अच्छी चल रही, तो मेरा कानूनी और मेरा मजहबी हक है कि मैं वो कर सकता हूं, ठीक है, जबकि मैं अपने पहले के हकूक पूरे कर रहा हूं। ठीक है, तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हो सकती थी, जब आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो उस पर बखेड़ा खड़ा कर दिया गया। नोबडी वांट्स टू नो द ट्रूथ, क्योंकि उसमें मसाला नहीं है ना, उसमें मसाला नहीं है। मैं भी जानता हूं, मैं आज अपना YouTube चैनल चलाता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि यार मैं ऐसा, मुझे मेरे साथ जो वो YouTube चैनल चला रहे हैं, अगर वो मुझे ये कहें कि जो कैप्शन है ना वो बड़ी ऐसी हो कि लोग क्लिक करने पे मजबूर हो जाएं, बिल्कुल ठीक है,
जो थंबनेल है ना वो ऐसा हो कि लोग क्लिक करने पे मजबूर हो जाएं। इसका मतलब है मुझे पता है कि मैं जब ये लिखूंगा ना कि मोहसिन अब्बास हैदर फाउंड गिल्टी, तो ही लोग क्लिक करेंगे। तो लोग आएंगे। आज तक दे आर यूजिंग माई नेम टू गेट फेम, even their family, even her sister, even her brother-in-law, they're still using my name. अरे make your own identity यार। कब तक आप यूज करेंगे कि मोहसिन अब्बास हैदर के ये ने ये कहा? You guys are still using my name. Come on, get done with this. So मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से, इजी हो जाए, इजी हो जाए। फिर ऊपर एक जात है यार, ऊपर एक क्रिएट इजी। ये डिस्कनेक्ट हो गया एक्चुअली। सो कि इंतजार कर लिया करें तहकीकात होने का, चीजों को क्लियर होने का, और उसके बाद अपनी राय दिया करें। लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया इसको बैन कर दो, टाइम्स अप, इसकी रोजी रोटी छीन लो, इसके ऊपर दरवाजे बंद कर दो। और वो ऐसे लोगों ने जिन्होंने ना मेरी स्ट्रगल देखी है, जिन्होंने ना मेरी मेहनत देखी है, जिन्होंने ना देखा है कि ये कैसे पहुंचा यहां तक, इसको प्लेट में नहीं मिला था। और मैं जैसे बहुत से लोग मेहनत करते हैं, तो कोई भी सोशल मीडिया पे बैठ के ये नहीं तय कर सकता उसका फ्यूचर क्या होगा। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं पिछले 1 साल से बेरोजगार हूं और मेरे पास काम नहीं था, तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं दिए अल्लाह ने। सही। किसी ने आके ये नहीं कहा कि अच्छा तुम्हारा बिल प्ले कर देते हैं, तुम्हें कोई मदद की जरूरत तो नहीं है, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं है। Nobody said that. I did it on my own। या मेरे साथ मेरे जो 4-5 दोस्त थे जिन्होंने मेरा इस पूरे वक्त में साथ दिया, वो लोग मौजूद थे मेरे साथ, और उन्होंने जिन्होंने मुझ पे बिलीव किया, मेरे जो फैंस थे उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट रखा कि नहीं, हम इसको 14 साल से फॉलो करते आ रहे हैं, देखते हैं क्या एंड निकलता है। तो इंडस्ट्री में भी जितने भी लोग सामने आए, नोबडी इज विटनेस। वसीम बादामी साहब के शो पे भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि आपके लिए बहुत से विटनेसेस आ गए। नोबडी सेड दैट कि हमने देखा है। जिन लोगों ने कहा कि वो मैं सेकंड हैंड विटनेस हूं, तो सेकंड हैंड विटनेस की ना तो कोई वो होती है। आप अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पे कह रहे हैं कि हाँ मैं भी लिख देता हूं, जाके टाइप कर देता हूं। मतलब मैं खुलकर नहीं बताना चाह रहा, सबकी बहनों की इज्जतें होती हैं, सबकी बेटियों की इज्जतें होती हैं। आपकी गर्लफ्रेंड आपको कहती है कि देखो ये ऐसे हुआ है, मैं उसकी दोस्त हूं, उसकी बीवी की, तुम ये लिख दो, जरा टाइप कर दो, और आप विटनेस बन जाते हैं। हाउ? जिन खवातीन ने कहा कि हमने देखा है, जिनमें मेरे ख्याल में एक ही है, वो मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, वो मेरे लिए बड़ी इज्जत की जगह है, मेरी दोस्त की वाइफ है वो। उनके भी 3-4 बयान मुख्तलिफ जगहों पे बदले के पहले सड़क पे घसीट रहा था, अरे सड़क पे घसीट रहा था तो पूरी इस्लामाबाद ने पीटा क्यों नहीं मुझे, आपने क्यों नहीं पीटा। फिर उनका दूसरा बयान था कि मैंने आवाज सुनी थी, मैंने सिर्फ आवाज सुनी थी, मैंने देखा नहीं था। तो कॉमन सेंस नहीं है हमारी आवाम के पास कि एटलीस्ट रिलैक्स। मुझे मेरे दोस्त जो थे वो खामोश हो, कुछ ने, क्योंकि उस वक्त ऐसा टाइम था कि वो जो भी लिखते वो बैक फायर होता, वो खामोश हो गए। मैं उनकी खामोशी अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है वो खामोश हो गए। उनको लगा कि हाँ उसमें बैकफायर करता अगर वो कुछ भी कहते, क्योंकि वो चीज इतनी स्ट्रांग थी। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे, अल्लाह पाक सबको। लेकिन जब भी किसी के ऊपर मुश्किल वक्त आए, तहकीक कर लिया कीजिए और जजमेंट्स ना पास किया करें। आपको पता भी खुदा है, आपका रोजी रोटी भी अल्लाह ने लगाई हुई है। आप किसी पे ये तय कर दें कि ओ मोहसिन जो है ना इसकी तो रोजी बंद करो, इसका टाइम ही अब हो गया है। हाउ कैन यू से समवन टाइम इज अप? हाउ? अरे अच्छा बुरा जैसा भी काम तो कर रहा हूं ना। किसने दिया? मैं नहीं गया काम मांगने किसी के पास, अभी भी नहीं गया। मैं 14 साल में कभी नहीं गया किसी के पास। मेरा तवक्कल इतना मजबूत है कि जिसको मैं चाहिए होगा वो मुझे ले लेगा। मेरी कोई पीआर कंपनी हायर नहीं की हुई आज तक, मैंने कभी नहीं की। मेरी कोई लोग नहीं है जिनको मैं पैसे देके लगवाता हूं। जब जितने ब्लॉगर्स हैं, मैं उनका बड़ा मशहूर हूं कि उन्होंने हमेशा मुझे इस तरह से सपोर्ट किया कि जब जब मेरा कोई प्रोजेक्ट आता था वो खुद चीज लेते थे। मेरी कोई पीआर कंपनी नहीं उनको कहती थी, वो खुद लगाते थे, उस बारे में अच्छा लिखते थे। लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने मुझसे पूछने की बजाय, 1-2 के अलावा मुझे किसी ने मेरी साइड पूछने की बजाय उन्होंने छाप दिया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि कोर्ट ने इसको गिल्टी करार दे दिया। अब उनके जितने भी 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख फॉलोअर्स थे, उन सब ने मान लिया कि मोहसिन को गिल्टी करार दे दिया कोर्ट। लेकिन ये किसी ने नहीं लिखा कि वो ये विद द प्रूफ। कोई लगाता ना यार, कोई लगाता प्रूफ के साथ कि ये प्रूफ है
कोर्ट के ऑर्डर्स हैं मोहसिन ने दिखा दिए हैं ऑफिशियल चैनल पे बैठ के। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ अदालत मुझे चपेड़े मार के जूते मार के ले जाएगी उठा के, तुम कैसे मिसलीड कर सकते हो, यू नो। तो अगर मैं दिखा तो वो ऑथेंटिक है और आप उसको दिखाएं कि हाँ मोहसिन क्लियर हो गया। आप अगर इस केस फॉलो कर रहे थे थ्रू आउट कि हाँ ये अब इसकी अपडेट है, अब ये इसकी अपडेट है, अब ये इसकी अपडेट है, तो आप इसको मंतकी अंजाम तक भी तो पहुंचाएं ये दिखा के कि ओके ये रिजल्ट निकला उस केस का। सही है, तो ये निकला है हमसे छोटा सा कि वो अगर इसको भी हाईलाइट करते तो अच्छा होता। नहीं, आई एम श्योर हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर जो होता है लोग और हमारी फ्रेटर्निटी और हमारी इंडस्ट्री बहुत रिएक्ट करती है। मैंने नोटिस किया है, हम बहुत छोटी सी इंडस्ट्री हैं और कोई भी इशू होता है तो वी लाइक बिकमिंग पार्ट ऑफ इट बिकॉज वी हैव टू गिव फीडबैक। जिस तरह आपने खलील साहब का भी नाम लिया तो मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि यार सबको पता है अगर खलील साहब का एक तरीका है काम करने का, आपको किसने कहा था आप उनके साथ काम करते? अगर उनका एक आई मेट हिम पर्सनली, इट वाज माय प्रोफेशनल डिसीजन एज वेल कि यार क्या मैं काम करूंगा नहीं करूंगा। हर किसी को एक चॉइस होती है जिंदगी में, किसी को काम करना है नहीं करना है, कि हमें ओपिनियन देने का बहुत ज्यादा शौक है। राइट, so towards the end, we've spoken about something. Anyone who's watching right now, some final thoughts, some final words as an actor, as a part of the fraternity, some positive things, anything you want to say to anyone watching, just some closing remarks and we'll call it a day. करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। मेरा ये मानना है कि ये एक ऐसा काम है, इसमें ये फ्रेटर्निटी ने मुझे बनाया, इसने मुझे इतना प्यार दिया, इन्हीं लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इन लोगों ने मेरे साथ काम करके मुझे हमेशा मुखातिब करते हुए कहा कि ही इज अ मल्टी टैलेंटेड। मोहसिन जो है इसके पास बहुत से हुनर हैं और मोहसिन जो है अपनी तर्ज का एक अलग टैलेंट है हमारी इंडस्ट्री का। इस तरह के रिमार्क्स भी इसने दिए मुझे, तो आई एम रियली थैंकफुल। मेरी फैमिली है ये, मैं यही काम करना चाहता हूँ, मैं यही काम करता आ रहा हूँ। और मैं अच्छा बुरा, आप अच्छे प्रोजेक्ट्स करते हैं, बुरे प्रोजेक्ट, कोई फॉर्मूला नहीं है हिट फिल्म देने का या हिट प्रोजेक्ट देने का, हिट गाना देने का, कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। इट्स जस्ट दैट यू डोंट नीड टू क्विट। आप क्विट ना करें, आप करते जाएं करते जाएं। अच्छा किया है वो भी आगे बढ़े उसको करके, बुरा किया है वो भी करके आगे बढ़ जाएं। ऑडियंस ने डिसाइड करना है कि वो उनको पसंद क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो आप वो काम करते जाएं और पॉजिटिवली एक दूसरे का बुरा काम भी है क्रिटिसाइज करते हुए अल्फाज के चुनाव का इस्तेमाल वो बड़ा जो है ना वो सोच समझ के किया करें। सोशल मीडिया बुलिंग जो है उस पर कंट्रोल करें। वो चाहे हमारी एक्ट्रेसेस हैं, आप उनको हिट कर रहे हैं, वो लोग बड़ी मेहनत करती हैं आपको एंटरटेन करने के लिए। एक्टर्स आपको एंटरटेन करने के लिए दिन रात एक करते हैं, खून पसीना एक्चुअली बहाते हैं। मैं अक्सर कोट करता हूं, नामालूम अफराद में हमारे पैरों की जो चप्पलें थी वो घिस चुकी थी अदालत पर, उसमें हड़ताल वाले सीन में, और कील घुसे हुए थे जावेद शेख साहब की एड़ी में और खून निकल रहा है पैरों से और भाग रहे हैं और पसीना। तो एक्चुअली खून पसीने हम एक करते हैं आपको एंटरटेन करने के लिए। तो रिस्पेक्ट किया करें उन आर्टिस्ट की, उनके लिए मायूब अल्फाज का इस्तेमाल मत किया कीजिए। और इंडस्ट्री हमारी बेहतरीन इंडस्ट्री है, वो ग्रो कर रही है। जो एक्टर्स जिनका हम जिक्र कर रहे हैं उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट है इस काम की इज्जत करना शुरू करें। नुमान एजाज साहब को फिर कोट करूंगा, दिहाड़ी मत बनाएं इसको, पैसा कमाएं इससे। हम मजदूर हैं, हमें उजरत ज्यादा मिलती है मजदूर से, तो उस उजरत की इज्जत करना जरूर सीखिए, उसका एहतराम करना जरूर सीखिए, उसको माथे पे लगाना जरूर सीखिए कि क्योंकि वो अल्लाह ने आपको इस काम से रोजी दी है तो इस काम का एहतराम करें। ठीक है, आपकी वजह से सीनियर एक्टर जब सफर कर रहा होता है, मुझे एक्चुअली बहुत बुरा लगता है कि एक सीनियर अदाकारा है या एक सीनियर एक्टर है, वो बैठे हैं कि बेबी या बाबा के टेंट्रम्स कम खत्म हो तो ये सीन शुरू हो। वो भी उसी धूप में खड़े हैं, लेकिन बेबी या बाबा के लिए छाता आगे है, लेकिन आपा या जो हमारे सीनियर एक्टर हैं वो खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो लाइमलाइट में नहीं है, क्योंकि उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स नहीं है, इसलिए उनको आप वो माहौल भी नहीं देंगे या आप उनको वो फैसिलिटीज भी नहीं देंगे। प्लीज ना करें, एहतराम से बड़ा कुछ नहीं है। प्लीज इज्जत करके काम करें, हंसते खेलते काम करें, पैसा भी कमाएं, इज्जत भी कमाएं, शोहरत भी कमाएं। और एंड पे कितना काम किया यार आपने। आई एम सो सॉरी, मैं इसको थोड़ा लंबा करूं। मुझे 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 मेरे अंदर ये एक फ्रस्ट्रेशन है। इरफान खान एक बेहतरीन अदाकार थे, कोई इस चीज से इनकार कर दे, कोई एक बंदा इनकार कर दे, कहां गए वो? मट्टी के अंदर चले गए। मैंने आज मुझे एक शेर लिखा मैंने कि जिस मट्टी पे तुम इतरा रहे हो, मनो मट्टी तले जाना है इसको। मैंने इससे पहले भी एक नज्म लिखी थी कि है तकब्बुर के तुम आते हो चार खबरों में, तुमसे अच्छे कहीं अच्छे पड़े हैं कब्रों में।
तो इजी हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, कुछ नहीं हो गया, कोई तुर्रमहान नहीं है, कोई मार्का नहीं मार लिया आपने 4 हिट फिल्में देके, 2 अच्छे ड्रामे देके या 100 मिलियन ऑफ फॉलोअर्स लेके। आप इंसान ही है यार, एंड पे आपने मर जाना है यार, बिल्कुल सही, 100%। एंड पे आपने मट्टी के नीचे जाना है। आपकी अच्छी याद रह जानी है लोगों को कि यार ये सेट पे ट्रीट कैसे करता था, ये इसको कैसे ट्रीट करता था। मैं कपड़े इस्त्री करने वाले को थप्पड़ मार दूं, मैं चाय लाने वाले के ऊपर चाय गिरा दूं कि मुझे चाय नहीं पसंद आई आज, नहीं यार। उसने बेचारे ने, वो 2 बच्चे हैं उसके, माँ बाप में बीवी है, उसने उनको पालने के लिए आपकी चक चक सुन रहा है, वो आपकी बकवास सुन रहा है, आपके 2-2 टके की बातें सुन रहा है यार। नो, सेल्फ रिस्पेक्ट है सबकी यार। एंड पे ट्रीटमेंट ही रह जाना है, एंड पे गुफ्तगू रह जानी है, आपकी अच्छी बात रह जानी है यार। सो प्लीज जस्ट काम डाउन। कोई अव्वल तो मैं आज आपको ये बात कहना जरूरी समझता, अव्वल तो पाकिस्तान ने इतना बड़ा स्टार प्रोड्यूस किया नहीं कि जिसको हम देख के कहें कि जिसके घर के बाहर जो है ना वो लाखों का मजमा रो हर इतवार को इकट्ठा होता हो। तो इजी, रिलैक्स, आपस में फ्रेटर्निटी को ही टेंट्रम्स ना दिखाना शुरू कर दें। चले मान लिया आपके फैंस हैं, आप उनको दिखाएं कि ओके मैं मोटी आवाज करके बात करूंगा तो जो है ना मेरा बड़ा, नहीं यार रिलैक्स। हम भी यही काम करते हैं, आप भी यही काम करते हैं। अब तो उनको भी ना दिखाएं, आप एक इंसान है। मेरा मानना है कि एक जॉब है, एक नौकरी है, एक बैंकर जो सुबह टाई लगा के काम पे जाता है ना, आप भी इसी तरह मेकअप थोक के काम पे जाते हैं। ये काम है, आपको इससे पैसे मिलते हैं बस। तो इसको आप उसी तरह उसकी इज्जत करें, काम लें, प्रोफेशनल रहें और एक दूसरे की इज्जत करें यार। That's it. Fair enough. Nini, I'm obliged. Very very strong and very very educated message that you said, and I hope सुनने वाले इस बात को समझे, and I hope fraternity also listens to it. Mohsin, I'm thankful that you Thank you so much. gave this time, and I hope आपके जितने भी upcoming projects हैं, I get to see them very soon. We are missing you from the screen, and we will look forward to all the performances that you've given before and do more upcoming. And inshallah, मैं खुद भी हूँ इस वक्त बाहर मुल्क फंसा हुआ, मुझे भी वापस आना था। इंशाल्लाह once I'm back, we will definitely get in touch. Stay safe, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह खैरियत से आए। Better things are in pipeline, and once I'm back, we'll definitely connect. And thank you so much for talking, and I will be in touch. Stay safe always, and prayers. Thank you. Thank you. Allah Hafiz.